Hello, hello, good afternoon. Hello. Good afternoon, sir. Yes, sir. In previous class, some Good students, afternoon, sir. good afternoon. In previous class, some student told me that we have to learn networking, computer network. I think computer network has not been taught in previous class. Okay. Yes, sir. Everybody agree with me? Yes, Hello. sir. I am agree, sir. Okay. Okay, roll number 35. Hari Om Kumar. What is computer network? Multiple computer connected with in a environment that is called computer networking. Roll number 1. Rajesh Kumar. What is computer network? नहीं मालूम सर. Okay, I am explaining. First I will explain, then you will write. Okay. Computer network is Okay, computer network is a collection of millions, billions, trillions or more than one computer network is called computer network. अगर कंप्यूटर नेटवर्क एक से ज्यादा सिस्टम से जुड़ा हुआ है, एक सिस्टम है, डेस्कटॉप है, दूसरे से जुड़ा हुआ है, आज के डेट में लैपटॉप भी जुड़ जाता है अनगाइडेड मीडिया के द्वारा, मतलब वाईफाई के द्वारा, तो भी एक नेटवर्किंग है कि नहीं? yes, आज हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को हॉटस्पॉट से जोड़ लेते हैं, yes, sir. तो भी क्या है, एक नेटवर्किंग है. ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं बात? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Now write down the definition of computer network. Okay, sir. Say. A computer network is a, write down. Yes, sir. A computer network is a group of computers. A computer network is A group of computers yes, sir. that use a set of common communication protocols. That Use a yes, sir. That use set of that uses a set or that use a set of common communication protocols over digital interconnection for the sir set of common. सर फिर से बोलिए तो सर. फिर से बोल दें. Yes, Yes, sir. A computer network is a computer network is a group of computers that use a set of common same communication protocols. ठीक है. yes, sir. Over digital interconnection. Over digital interconnection Connection for the purpose of
for the purpose of sharing resources sharing resources located on or provided by the network nodes. Sharing resources Located on or provided by the network nodes. repeat sir Sharing resources located on or provided by the network Located nodes. ठीक है? Yes, sir. No. अब क्या समझे आप लोग कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में? A computer network is a group of computers that use a set No. of common communication protocol over digital internet डिजिटल इंटरकनेक्शन. interconnection connections नाउ आई for एम the purpose of sharing resource allocation on ओके. or provide networking costs. Okay, now I am asking that कंप्यूटर ग्रुप मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय ग्रुप? ग्रुप से क्या समझे तुम लोग? मतलब सर मोर देन एक से अधिक कंप्यूटर सर आपस में जुड़े रहना सर. यानी एक कंप्यूटर तो सिंगल स्टैंड एलोन कंप्यूटर हो गया, होगा कि नहीं? यस सर. एक से ज्यादा जैसे ही हुआ, मोर देन वन की बात हुई और वो हो गया ग्रुप. मोर देन वन कंप्यूटर मतलब ग्रुप हो गया कि नहीं? यस सर. इसमें कोई डाउट No, sir. नहीं है सर. जैसे हम लोग अपने मोबाइल फोन से एक साथ कितने लोग को शेयर कर सकते हैं इंटरनेट? मोर देन हाउ मच? हाउ मेनी? एक से अधिक लोगों को भी कर सकते हैं सर. कितना? मैक्सिमम Unlimited. 7 और 8 होता है आई थिंक. यस सर. 8. Yes, sir. तो क्या हुआ, 7 8 जब हुआ तो वो क्या हो गया, नेटवर्क हो गया कि नहीं? यस सर. तो मोबाइल नेटवर्क Yes, हो sir. गया. सर एक मिनट सर, तो इसमें सर बोल रहे हैं शेयरिंग सर, तो इसमें सिर्फ सर डेटा शेयरिंग हो सकता है और दूसरा चीज तो शेयरिंग नहीं हो सकता है यहाँ सर. किस चीज से? मतलब वो जैसे हॉटस्पॉट से सर, हम्म, जैसे अभी अगर एक हॉटस्पॉट से सर सुन लो. 2-4 फोन को अगर कनेक्ट किए हैं सर, तो उसमें सब सिर्फ सर डेटा का ट्रांसफर हो सकता है या फिर और कुछ चीज का सर. डेटा शेयरिंग हुआ. डेटा भी तो एक रिसोर्स है. यस सर. डेटा इज ऑल्सो रिसोर्स. यस सर. तो और कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है, आज हम जितने वेब एप्लीकेशन पे काम करते हैं, क्या सारा वेब एप्लीकेशन इंडिया का ही बना हुआ है? नो सर. नहीं सर. हम यूएसए, यूके, कनाडा, कोई भी देश का कोई भी वेब एप्लीकेशन देख सकते हैं. तो क्या सबका सर्वर इंडिया में रखा हुआ है? नहीं ना. नो सर. सर्वर जो जहां बनाता है एप्लीकेशन को, सर्वर उसके पास होता है. उस सर्वर पे डालता है डेटा, और जितने भी कंप्यूटर्स उससे कनेक्टेड हो जाते हैं उस डेटा से, सबके पास वो पहुंच जाता है. पहुंचता है कि नहीं? यस सर. तो सोचो नेटवर्किंग, आप इंडिया में बैठे हो, आप सर्वर कहाँ का खोल देते, आप कॉलेज की फीस जमा कर देते, यूनिवर्सिटी से रिजल्ट देख लेते. यूनिवर्सिटी तो पटना में रिजल्ट डाल रही है, दिल्ली में डाल रही है, मुंबई में डाल रही है, बच्चे तो घर बैठे देख रहे हैं. यस सर. यूनिवर्सिटी का जो सर्वर है, सर्वर कहाँ पे है? पटना में यूनिवर्सिटी का, दिल्ली में जहाँ है, बॉम्बे में. लेकिन सब लोग को वो रिसोर्स जो है, रिजल्ट भी एक रिसोर्स है, वो रिसोर्स सब लोग देख रहे हैं कि नहीं? यस सर. कि किसी को डाउट? अब नो सर. अब लिखो, सेकंड लाइन लिखो तुम लोग. इसी में सर. हाँ. ओके सर. डेटा कम्युनिकेशन कंटेनिंग डेटा कम्युनिकेशन कंटेनिंग डेटा
data communication containing messages, pictures and voice messages, and voice and etc. ठीक है। yes sir, अब लिखो डेटा communication can be of two types. Data communication can be of two types. Data communication can be of two data types. communication, Can be of two types. yes sir, Number one, bidirectional. Bidirectional. Okay. yes sir, bidirectional, Number two, unidirectional. क्या सर यूनी, Unidirectional. yes sir, Bidirectional means, मैं बोल रहा हूं पहले कि सेंडर भी एक तरफ मतलब से। डेटा गया भी और डेटा रिसीव भी हुआ, मतलब सेंडर एंड रिसीवर बोथ वर्क्स। ओके, पहले सुन लो। ओके सर, बाय डायरेक्शनल मीन्स डेटा गया भी और आया भी, गया भी और आया भी, मतलब दोनों टाइम, दोनों तरफ से काम हुआ, सेंडिंग भी हुआ और रिसीविंग भी हुआ। रिसीविंग, ठीक है। और यस सर, यूनी डायरेक्शनल में होता है कि एक तरफ से केवल जा रहा है। यूनी डायरेक्शनल मीन्स यही हुआ कि डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन मतलब वन वे काम कर रहा है। लाइक ए वॉकी टॉकी, हाँ, कर सकते हैं। या जैसे आप समझो कि टीवी स्टेशन होता है, जो टीवी पे सब चैनल बांटते हैं, एक बैठा हुआ है, नहीं नहीं, और वो सबको भेज रहा है, कह सकते हैं। यस सर, जैसे एक टीवी का टावर है, समझो ना बात, एक टीवी का टावर है और उससे सैकड़ों टीवी को केवल भेज सकता है, और टीवी क्या वापस उसको भेज सकता है? नो सर, वो सिर्फ भेजता है सर, तो वो क्या कहलाएगा? जो टीवी का टावर होता है और सब जगह भेजता है, वो क्या कहलाएगा? यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है। अब आई बात बाई डायरेक्शनल की। तो बाई डायरेक्शनल में क्या होता कि जैसे कंप्यूटर भेजता भी है, मतलब दो कंप्यूटर है तो एक दूसरे को डेटा भेज भी रहा है और रिसीव भी कर रहा है, मतलब सेंडिंग भी हो रही है यस और रिसीविंग भी हो रही है। यस सर, किसी को कोई डाउट समझने में? यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल बोलो। नो सर, कोई भी बच्चा बोल ही नहीं रहा, एक ही बच्चा बोल रहा है। नो सर। नो सर, और नो बोलो। सर, तो अभिषेक बताएगा, अभिषेक कुमार, रोल नंबर 41। यस सर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनी डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल? सर बाय डायरेक्शनल में डेटा आता और जाता, मतलब रिसीव भी होता है और सेंड भी होता है। और यूनी डायरेक्शनल में सिर्फ ट्रांसफर होता है डेटा, मतलब सिर्फ सेंड होता है, रिसीव नहीं होता है। ठीक है, समझ यस गए? सर, यस सर। अब डिफिनेशन लिखवा दूं कि लिख लोगे खुद से, या लिखवा ही देता हूं? हैं, लिखवा दीजिए सर, लिखो। लिखवा दीजिए सर। बाय डायरेक्शनल, लिखो, बाय डायरेक्शनल communication means from source to destination and vice versa. सर बाय डायरेक्शनल मींस, Bidirectional communication means from bidirectional communication means from source to destination and vice versa. समझ गए? फ्रॉम Source to destination and vice versa. वाइस वर्सा। मतलब जाएगा भी और वाइस वर्सा, मतलब
क्या सर स्पेलिंग सर, स्पेलिंग किसका? वाइस वर्षा VICE-VERSA। यस सर। अब लिखो इन यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन, क्या सर? इन यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन in unidirectional communication, transfer of data is from source to destination only. कम्युनिकेशन In unidirectional communication, transfer of data is from source to destination only. ओनली। अब एग्जाम्पल लिख लो इसका। Communication between TV center and televisions at home. क्या सर? रिपीट सर। एग्जाम्पल ऑफ यूनिडायरेक्शनल लिखा रहा हूं। Communication between TV center and television at home टीवी सेंटर and television at home is example of unidirectional. ठीक है? यस सर। यस सर। एक तुम लोग डायग्राम बना लोगे, एक टीवी सेंटर खड़ा कर लोगे, बगल में 2 4 5 टीवी का डायग्राम बना लो, हैं? क्या सर? किस तरह का डायग्राम? एक टीवी सेंटर, एक एंटीना टाइप बना लो, बगल में 4 5 टीवी लगा लो कि उससे सिग्नल आ रहा है सबको। ओके सर। अब वापस तो नहीं जाएगा टीवी से सिग्नल उसमें दोबारा? एक तरफ दिखाना है, हाँ यूनिडायरेक्शनल। हाँ, वेरी गुड। रोल नंबर 21 कुछ बोलोगे? चुप ही रहेगा क्या? रोल नंबर 41 अभिषेक। यस सर। रोल नंबर 10 सिद्ध कुमार। यस सर। बोलते क्यों नहीं हो? यस सर, बोलते तो। अब मैं 1 सेकंड के लिए शांत रहना, अटेंडेंस ले रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके सर। हाँ हेलो, आवाज गई? यस सर। यस यस सर। यस सर। अब लिखो गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क का गोल क्या है? गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है? लिखो फर्स्ट पॉइंट। लिख रहे हो?
Yes, Hello. sir. To provide, Yes, sir. देखो, to provide sharing of resources, Sir. to provide sharing of resources such as information or processors. Please repeat, sir. To provide sharing of resources such as information or processors. ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, सर इंफॉर्मेशन और प्रोसेसर्स। सेकंड पॉइंट, यस सर, सेकंड पॉइंट, it provides the network user, it provides the network user with maximum performance at minimum cost. विथ Minimum cost, ठीक है। Sir, maximum. It provides network user with maximum performance with minimum cost. Next point, it provides centralized management and allocation of network resources. इट्स प्रोवाइड Centralized management, it provides centralized management and allocation of network resources. सेंट्रलाइज Management and Allocation of. network resources, ठीक है। Yes, sir. अब लिखो हेडलाइन देके, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। फर्स्ट पॉइंट लिखो, वन नेटवर्क मेजर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर मेजर application of computer networks are मेजर एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क्स computer networks are, लिखे, Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट बिजनेस एप्लीकेशंस, फर्स्ट पॉइंट बिजनेस एप्लीकेशंस, सेकंड होम एप्लीकेशंस, थर्ड लिखो मोबाइल कंप्यूटर्स, ठीक है। यस अब हेडलाइन दो, बिजनेस एप्लीकेशंस। बिजनेस एप्लीकेशंस, ठीक है। आज के डेट में कितना बिजनेस एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, देखो जैसे कहीं भी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, मेडिसिन बन रही है, फैक्ट्री बन रही है, कारें बन रही है, कुछ भी बन रहा है, तो दूर से भी बैठकर आदमी मॉनिटर कर सकता है कि प्रोडक्शन सही चल रहा है कि नहीं, या वहां पर बैठा आदमी भी देख सकता है कि सही चल रहा है कि नहीं। चाहे बिस्किट फैक्ट्री हो, ऑयल फैक्ट्री हो, सब कुछ में देख सकता आदमी, चाहे पैसा पेमेंट करना हो सकता है कि नहीं। यस सर, लिखो बिजनेस एप्लीकेशन लिखो,
nowadays computers are used for nowadays computers are used for used for monitor production, मॉनिटर करना, ठीक है, मॉनिटर समझते हो ना, yes sir, yes, monitor production, प्रोडक्शंस कॉमा comma इन्वेंट्रीज, in inventory, इन्वेंट्रीज, ठीक है, yes sir, एंड मेनी मोर हैं। and many more, yes sir. अब लिखो बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस रिसोर्स, क्या सर इसके अंदर सर? हाँ बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर 1 नंबर पॉइंट है कि लिखो डेटाबेस रिसोर्स। yes sir, database resource, डेटाबेस रिसोर्स से क्या समझते हैं, जैसे कंपनीज को कोई डिसीजन लेना है, कंपनी को डिसीजन लेना चाहती है किसी चीज के प्रोडक्शन में, कि आज तुम देखते होगे कि कोई सा भी प्रोडक्ट कम तभी लॉन्च करती है जब वो मार्केट को स्टडी करती है, प्रीवियस डेटा को स्टडी करती है कि नहीं? yes sir, Yes, sir. चाहे पिछले बैंक हो डेटा गया, को देख, देखो डेटाबेस रिसोर्सेज में 1 लाइन लिख लो, 2 लाइन बस, ठीक है। बोलिए सर। लिखो द डेटाबेस इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस फॉर डिसीजन मेकिंग, द डेटाबेस is required to access for decision making by various departments. एक्सेस के बाद The database is required to access for the database is required to access for decision making by various departments, ठीक है। किसी को कोई समझने में दिक्कत? नो सर, डिपार्टमेंट। हाँ। और अब इसका बिजनेस का ई कॉमर्स के बारे में जानते ही होंगे। क्या सर? सेकंड पॉइंट लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसी में बिजनेस एप्लीकेशन में सेकंड पॉइंट लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, समझ रहे हैं? लिखो मेनी कंपनीज डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली with suppliers and customers, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिए होम एप्लीकेशन, पहला लिखाया था ना बिजनेस एप्लीकेशन, यस सर। सेकेंड लिखिए होम एप्लीकेशन। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। आज के डेट में इंटरनेट के थ्रू घर में लोग वॉशिंग मशीन, ओवन, एसी मोबाइल से कंट्रोल होता है, जानते हो नहीं ये सब चीजें हैं? हेलो, यस सर। तो क्या हुआ, वो भी तो नेटवर्क है, नेटवर्क वाईफाई है, बिना वायर के हो जाता, होता है कि नहीं? लिखो nowadays use of computers is in home,
is in home. फर्स्ट पॉइंट लिखिए, यूज कंप्यूटर इन ए होम। इन होम, फर्स्ट पॉइंट इंटरनेट एक्सेस, ठीक है। सर फिर से बोलिए ना, मेरा छूट गया। Nowadays use of computers in home, first point internet access, second point personal communication, third point entertainment, थर्ड पॉइंट सर, entertainment, fourth point electronic commerce, ठीक है। अब मैं फर्स्ट पॉइंट पे आता हूं, इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट एक्सेस में क्या होता है कि आज लोग कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इंटरनेट यूज करते हैं, घर पे भी लोग करते हैं, कोई प्लेइंग गेम करने के लिए करते हैं। और जो इंटरनेट पे है इंफॉर्मेशन हर चीज का इंटरनेट पे अवेलेबल है कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ, तो साइंस के बारे में जानना हो, बिजनेस के बारे में जानना हो, गवर्नमेंट के बारे में जानना हो, हेल्थ के बारे में जानना हो। आज कोरोना पैंडेमिक में गवर्नमेंट ने टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से लोगों को कितना समझाया कि नहीं? हेलो, यस सर। यस सर। तो अगर Yes, sir. कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता तो कैसे होता काम है? हेलो, पर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड मैंने लिखवाया पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए। सब पे लिखवा दूं कि लिख लोगे खुद से? बोलो जैसा। हेलो, कोई बोलता ही नहीं कुछ। लिखवा दीजिए सर लिख तो लेंगे पर सर लाओ लिखो, सेंटेंस परफेक्ट हो इसलिए। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, सर्फिंग ऑन इंटरनेट। इंटरनेट भी तो बिना नेटवर्क के नहीं चल सकता। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि नेटवर्किंग का सब एग्जांपल बताओ तो कंप्यूटर नेटवर्क का, तो तुम बोल सकते हो इंटरनेट इज ए बिग एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, बोल सकते हैं। यस। यस सर। लिखो, सर्फिंग ऑन इंटरनेट में बी फॉर फन। लिख रहे हो ना? यस सर। यस सर। Surfing on internet may be for fun, comma, to acquire information and for playing games. To acquire information and for फन playing के बाद सर क्या? सर में फन के बाद comma, to acquire information and for playing games. To acquire information and for playing games, ठीक है। फुल स्टॉप। Information on every field. Information on every field. Information on every field is available on internet. Such as arts, comma, science, comma, such as arts, 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 comma, Yes, sir. science, comma, साइंस, technology, comma,
बिजनेस कॉमा, गवर्नमेंट कॉमा, हेल्थ कॉमा, गेम्स कॉमा, ट्रेवल्स कॉमा, म्यूजिक कॉमा, कुकिंग कॉमा, ईटीसी। ठीक है। सेकंड पॉइंट यस लिखो, सर। सेकंड पॉइंट लिखो ईमेल, ईमेल कॉमा, इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए क्या है, हम लोग के पास है अभी इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए? क्या सर? इंस्टेंट मैसेजिंग करने के लिए क्या है हमारे पास अभी इंस्टेंट सर मैसेजिंग के लिए? ईमेल तो पर्सनल कम्युनिकेशन हुआ ना। इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए क्या है? व्हाट्सएप सर। वेरी गुड। व्हाट्सएप या मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। कॉमा, चैटिंग लिखते चलो, चैटिंग, चैटिंग। वीडियो फोन, यस सर। प्रोवाइड्स बाय इंटरनेट एंड www। हंस क्यों रहे हो भाई? www। और ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सर ये www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। समझ गए? यस सर। हाँ, अब ई कॉमर्स पे लिखो 2 लाइन। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स, व्हाट ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स होता क्या? नहीं पता सर। e-commerce, e-commerce, how many types of e-commerce are available in the world? देखो, there are, लिख रहे हो? यस सर। there are many types of e-commerce in world और in India। इन वर्ल्ड ही लिखो, ज्यादा अच्छा लगेगा। पहला लिखो बिजनेस टू कंज्यूमर, इसको बोल सकते हैं B2C भी बोलते हैं। ठीक है। पहला क्या बोले सर? बिजनेस टू कंज्यूमर, या बोल सकते हैं बिजनेस टू कस्टमर, B2C। B2C, बिजनेस टू कस्टमर। यस सर। फिर बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर के बाद फिर B2B। B2B, बिजनेस टू बिजनेस। यस सर। थर्ड गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, G2C। गवर्नमेंट लिख लो, कहीं भूल जाओ हैं। यस सर, साइड में लिख ले रहे हैं वो भी सर। फिर मतलब फोर्थ G2C। कंज्यूमर Yes, टू sir. कंज्यूमर। ठीक है। किसी को समझने में यहां तक दिक्कत तो बताओ। हेलो। और जब क्लास में हाँ, जब क्लास एंड करूंगा तो फिर बताना सिलेबस में। प्रीवियस क्लास में तुम बताए थे कि नेटवर्किंग तुम लोग को दिक्कत है, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और अभी जब क्लास में लास्ट करूंगा 2 मिनट पहले मैं पूछ लूंगा क्या चीज और बचा हुआ जो पढ़ा दूं, हैं, ओके सर। ताकि तुम लोग को कहीं दिक्कत ना हो एग्जाम के समय। हैं। अब लिखो मोबाइल कंप्यूटर्स। मोबाइल कंप्यूटर्स का क्या फायदा है, कहाँ यूज होता है? आजकल तो हर जगह हो रही है सर मोबाइल कंप्यूटर। क्या कहे? एवरीवेयर, सभी लिख जगह लो, हो रहा है। लिख लो। फर्स्ट पॉइंट, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS। क्या सर?
ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS, ठीक है। सेकंड, सर GIS का फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, बस 5 जाना है क्या? अच्छा, 10 मिनट लगे मैं। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यस सेकंड लिखो मिलिट्री एप्लीकेशंस, लिखे मिलिट्री एप्लीकेशंस। यस सर यस सर। नेक्स्ट लिखो एयरपोर्ट, यस सर। फिर नेक्स्ट लिखो बैंकिंग, यस सर ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो वेदर रिपोर्टिंग, वेदर रिपोर्टिंग। यस सर। समझ गए मोबाइल कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज होता है? बैंकिंग में ऑनलाइन बैंकिंग करते होगे सारे बच्चे, अब तो एक्सपर्ट हो गए होंगे। यस सर यस यस सर सर। अब लिखो आज टाइप। का हाँ बताओ बताओ। मतलब बोल रहे थे सर आज, तो उससे आज का टाइम सर वही सब का चीज का है ही सर। हाँ, अब लिखो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लिखो टाइप्स ऑफ नेटवर्क। पहले मैंने लिखाया कंप्यूटर नेटवर्क का एप्लीकेशन, लिखवाया भी, डेटा, यस सर ई कॉमर्स, होम, मोबाइल सब लिखवा दिया। अब लिखो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लिखे। ये सर टाइप ऑफ नेटवर्क। गो कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन ट्रांसमिट डेटा बाय 2 methods, कंप्यूटर नेटवर्क कैन ट्रांसमिट कैन डेटा डेटा computer networks can transmit data by 2 methods, ठीक है। यस सर। फर्स्ट है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, सेकंड लिखो, फर्स्ट लिखो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, क्या लिखे? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। नेटवर्क। सेकंड लिखो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। अब देखो ब्रॉडकास्टिंग क्या होता बताओ? पता नहीं है सर। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब जो टीवी वाला मैंने समझाया था कि प्रकाशित करना। यस ब्रॉडकास्टिंग मतलब वो एक टीवी सेंटर है, वहां से सिग्नल्स दिया, उस सेंटर से सैकड़ों टीवी जुड़े हुए हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। बात समझ में आई? बात समझे? यस सर। यस सर मतलब एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल है, सिंगल कम्युनिकेशन चैनल है। ब्रॉडकास्टिंग इज ए सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, सिंगल है लेकिन वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, समझ रहे हो बात में? यस सर जैसे टीवी का जो एंटीना या जो टीवी सेंटर है, जहां से पूरे बिहार या पटना या दिल्ली, जहां भी पूरे सैकड़ों टीवी उससे जुड़े हैं, हजारों टीवी जुड़े हैं, तो ब्रॉडकास्ट सेंटर को कहेंगे ब्रॉडकास्टिंग। मतलब इस टाइप के नेटवर्क को कहेंगे जो एक जगह से सिग्नल जाए, ट्रांसमिशन जाए, और सैकड़ों टीवी, हजारों टीवी, सैकड़ों उससे मतलब इक्विपमेंट जुड़ जाएं, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रॉडकास्ट, बोलेंगे। सर जैसे न्यूज चैनल वाला करता है। न्यूज चैनल वाला भी तो कहीं से लेता होगा। सर वो कैमरा से रिकॉर्ड करके मतलब अपने चैनल पे छोड़ देता है और हर टीवी पे चला जाता नहीं है। नहीं, वो अलग चीज है यार, वो दैट इज डिफरेंट थिंग। जैसे आज सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट से कितने लैपटॉप या कितने सिस्टम जुड़े होते हैं एक साथ, कितने लोग को इंटरनेट मिलता है? लेकिन बहुत बहुत लोग तो। लेकिन सैटेलाइट को वापस कोई थोड़ी करता है, करता है? नो सर।
तो ये वही हुआ सब कुछ है। मतलब सिंगल सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन, सिंगल सोर्स है जिससे निकल रहा है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस लिखो, अब लिखो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, लिखो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क्स। देखो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क यूजेज सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क यूजेज सिंगल uses सिंगल कम्युनिकेशन चैनल that is shared by many stations. Communication channel. Broadcast network uses single communication channel that is shared by many stations. many Stations, समझ गए? yes sir. इसका एक डिफिनेशन और लिख लो। इट इज ऑल्सो पॉसिबल it is also possible to send it is also possible to send To send it is also possible to send same packets to all the stations within a network it is called as multicasting. Sorry, it is called as broadcasting. किसी को समझने में प्रॉब्लम? yes sir. सेकंड लिखिए पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। No sir. पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क ये समझ लो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, बात समझ में आ गई? एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे, दो डिवाइस के बीच। समझ में आ रही है? लिख लो। समझ में आ गई कि नहीं? पहले लिखो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क्स provide a point-to-point networks provide a dedicated link between any two stations. Dedicated link between any two stations. ठीक है? Between any two stations. Station. ठीक है? The Yes sir. data packets are the data packets इसी में are सर हाँ the data packets are the data packets are sent from source station to destination station. नहीं 10 मिनट हो गए। बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछ दिया source station के बाद to the destination station full stop. Such a transmission is called unicasting. Such a transmission is called unicasting. Such as transmission Is called unicasting.
ठीक है। यस सर। देखो ये तो मैंने बताया टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सेंड के बाद बोलिए तो सर। क्या क्या बताओ, नहीं समझ पा रहा हूँ। सेंड के बाद सर। सेंड फ्रॉम सर सोर्स, सेंड बोलिए ना, मेरे छूट गया। the data packets are sent from source station to destination station. Such a transmission is called unicasting. समझ गए। यस ये हुआ टाइप्स ऑफ नेटवर्क। और एक तरीका और होता है टाइप्स नेटवर्क बताने का। एक तरीका तो ये हुआ टाइप्स ऑफ नेटवर्क। एक तरीका है कि नेटवर्क को हम उसके साइज के हिसाब से, फिजिकल साइज के हिसाब से बताते हैं। ठीक है, तो लिख लो। ये तो हुआ टाइप्स ऑफ नेटवर्क, एक ब्रॉडकास्ट हो गया, एक पॉइंट टू पॉइंट हो गया। अब हुआ नेटवर्क्स, लिखो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेटवर्क्स कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड, नेटवर्क्स कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड, नेटवर्क कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल साइज। Depending on their physical size. कौन गाना बजा रहा है? लिख लिए? अब लिखे भाई। यस सर। सर Yes, sir. डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल साइज, फिजिकल मतलब समझते फिजिकल हो, साइज। फिजिकल साइज। अब लिखो मेजर कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर, major categories of computer networks are first point LAN local area network, क्या सर? LAN local area network, ठीक है। दूसरा मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। सेकेंड सर? फर्स्ट लोकल एरिया नेटवर्क लैन, सेकेंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, थर्ड वाइड एरिया नेटवर्क वैन। सर मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क, अब लिखो। अब मैं एक भरवली बता देता हूं, पहले सुन लो। सुन रहे हो? हाँ, कुछ बोलता है ही नहीं कोई भाई, क्या हाल है? सर बोल तो रहे हैं। अब देखो कंपेयर लैन बैन मैन क्या हुआ, फिजिकल आधार पे ये नेटवर्क है, ठीक है। लैन क्या Yes, होता है, sir. लोकल एरिया नेटवर्क। हमको मान लो 2-3 किलोमीटर, आई हैव टू केबलिंग द वायर्स फॉर द इंटरनेट, आई हैव टू केबल द वायर फॉर द इंटरनेट फॉर 1 और 2 किलोमीटर और विद इन ए कैंपस और विद इन ए बिल्डिंग, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, लैन, ठीक है। मतलब ये स्मॉल एरिया Yes. कवर करेगा, LAN. ठीक है। सेकेंड आ गए बैन पे, वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब हमको एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश अगर यूज करना है तो वहां क्या यूज करेंगे, बैन, वाइड Ban. एरिया नेटवर्क। बैन मेट्रोपॉलिटन अब आ गया मैन। Ban. मैन मतलब इसमें अगर शहर में हमको बिछाना, जैसे पटना में, दिल्ली में, कलकत्ता में, एक शहर के अंदर करना है तो हम यूज करेंगे क्या, मैन। और एक 1-2 किलोमीटर, 2-4-6 बिल्डिंग के अगल बगल करना है 2 किलोमीटर तक, क्या यूज करेंगे, लैन। और एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक शहर से दूसरे शहर बैन। जाए, बैन सर। बस। बैन। अब लिखो सर बैन का फुल फॉर्म क्या बोले थे सर? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन, ओके सर। अब लिखो एक बार एक, फिर से बताएंगे सर, तीनों बार। फिर से बोले। लैन क्या हुआ,
लैन हुआ कि स्मॉल एरिया में यूज करना है, स्मॉल एरिया में मतलब उसका एरिया हो 1-2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर और विद इन 6-7-8 बिल्डिंग, मतलब स्मॉल एरिया और 7-8 बिल्डिंग में यूज करना है, एक लिमिटेड फील्ड के अंदर यूज करना है तो लैन यूज करेंगे, समझ गए। छोटी जगह में, छोटा एरिया में बैन करेंगे। हमको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नेटवर्क ले जाना है, एक शहर से दूसरे शहर में ले जाना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाना है, तब हम बैन यूज करेंगे। अब मैन कब करेंगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसे बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में, पटना में, जब नेटवर्क यूज करेंगे तो हम मैन करेंगे, समझ गए। यस सर। अब लिख लो तुम लोग, कंपैरिजन बिटवीन लैन, बैन एंड मैन। कंपैरिजन बिटवीन लैन, बैन एंड मैन, ठीक है। यस सर। कंपैरिजन बिटवीन लैन, बैन एंड मैन। एक तरफ एक पेज पे ऐसे ऐसे बनाओ, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखो, एक पेज को 4 भागों में बांट दो, एक पेज को 4 भाग में, समझ रहे हो मेरी बात। यस सर। सर 3 भाग में है ना? नहीं, जैसे लैन, बैन, मैन 3 कॉलम तो लैन, बैन, मैन में ही चला जाएगा। एक इधर पैरामीटर भी तो लिखेंगे, एरिया कवर्ड, एरर रेट, ट्रांसमिशन स्पीड लिखेंगे कि नहीं। यस सर। यस सर। देखो, कंपैरिजन बिटवीन लैन, बैन एंड मैन। कंपैरिजन बिटवीन लैन, बैन, मैन, एक तरफ लिखो, एक सेकंड, बच्चे के सर पढ़ाइए, बच्चे के पढ़ा दीजिए सर, क्या करें, टॉपिक खींच रहा है आगे डिटेल। हाँ, हरिओम बोल देते हैं। हाँ टाइम हो गया यार। क्या मैम? वेट करो। ठीक, लिखो कंपैरिजन बिटवीन लैन, बैन, मैन, लिख रहे हो। यस सर, यस लिखिए। सर। अब लिखो, पहले लिखो पैरामीटर, पैरामीटर लिखे, पैरामीटर। यस सर। अब कल पढ़ाएं। यस सर। सर अच्छा, कल ठीक रहेगा, इतना के लिए आज के लिए। आज 1 घंटा हो गया सर। और नहीं, टाइम से मत घबराओ, फिर घबराने वाली बात मत करो, पढ़ाई Yes, पे sir. ध्यान दो। और क्या सिलेबस पे बचा नेटवर्क, और बताओ जल्दी। सर कुछ स्टूडेंट का नेक्स्ट क्लास भी है सर, हैं? नेक्स्ट क्लास भी है। ठीक है, और सिलेबस क्या बचा, मैं ये पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास है, अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा ना, ऐसे क्या होगा फिर, हैं? ये हाँ सर। बोलो। सिलेबस चेक करके बताएंगे सर। परसों बता दोगे? परसों आज है फ्राइडे, अब तुम्हारी क्लास होगी सैटरडे, संडे, मंडे को, हैं? या तो मैसेज कर। मुझे मेरा मैसेज सर नेक्स्ट क्लास में इसको तला करिएगा ना, उसके बाद हम लोग बता देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। यस सर। हाँ, इतना इसको जब पूरा कीजिएगा तब वो बता देंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।